Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamu alaikum. My name is Mariam Javed and I am a student of clinical psychology. This video is about the learning disabilities in children. Learning disabilities are due to genetic or neurobiological factors that alter brain functioning in a manner which affects one or more cognitive processes related to learning. These processing problems can interfere with learning basic skills such as reading, writing, or math. There are three types of learning disabilities that we are going to demonstrate in this video. First, we are going to demonstrate the type dyslexia, which is the impairment in reading. Here is a 9-year-old child, Rahat. She is in 4th grade and she is facing impairment in reading known as dyslexia. Now, let's see a visual example of how she has learning disability of dyslexia. One day, Mahnoor was playing in a park. Playing in a park with her friends. क्या लिखे आगे? She लिखे. She noticed that people were kicking the flowers, Plucking plucking the flowers, killing the insects and making spark dirty. words को ध्यान से देखो और फिर बोलो. She is so upset. She was so upset. She was so upset. She wanted to save insects and the Environment. Spelling बताओ. ENVIRONMENT. Now we are going to discuss the type dyscalculia on the basis of impairment in mathematics. Here is a 5-year-old child, Hania. She has weak mental mathematics skills and have a poor sense of numbers. She cannot identify and distinguish math symbols and also faces difficulty counting backwards. She is also suffering from high level of mathematics anxiety. Now let's see a visual example of how she is facing difficulty in her maths. हानिया बेटा 11 के बाद क्या आता है? ये 0 है बेटा, आपने 1 लिखना है. यहाँ पे 1 लिखो, ये 1 होता है. वेरी गुड. अब यहाँ पे आपने 2 लिखना है. 12 आता है 11 के बाद. ये उल्टा 2 है. 2 कैसे लिख रही हो आप? आपके सामने लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है. आपको फिर भी पता नहीं चल रहा. आप लिखो सही वाला. वेरी गुड. Now we are going to demonstrate the type dysgraphia on the basis of impairment in writing. Now here is a girl named Amna. She is 8 years old and is in 3rd grade. She has the learning disability of writing, which is dysgraphia. Now let's see a visual example of how she is facing difficulty in her writing. Now, here is a case study of dysgraphia as a writing disability in children. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सब अपनी बुक का पेज नंबर 49 खोलें. आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट सेंटेंसेस. अपनी बुक पे फर्स्ट सेंटेंस देखें आप. आई लिव इन पाकिस्तान.
I live in Pakistan. आमना बेटा दिखाओ क्या किया आपने। ये क्या किया है? वर्ड्स भी सीधे नहीं लिखे हुए आपने, लाइन पे भी नहीं है। ये कैसे काम किया है? और सारा काम कहाँ है? आप तो आई थी क्लास में, आप तो एब्सेंट भी नहीं थी। काम कहाँ है? ये कैसे लिखा है? इसको लिखना नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। ओह आमना की टीचर, कैसी हैं आप? थैंक यू। यू आर वेलकम। कैसे है ना आपका? देखिए, मैं आपकी बेटी आमना की सेशन में आई हूँ। उसकी क्लास का परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं कर रही। वो थोड़ा सा टाइमिंग टेस्ट है लेकिन वो कर लेती है। नहीं देखिए, 4 माह हो गए टर्म शुरू हो गए और उस कुछ भी नहीं करी। मैं नोट करके उसको ना लिखती है, टेढ़ा मेढ़ा लिखेगी, लाइन पे भी उसके वर्ड्स नहीं आते, कुछ भी नहीं कर रही। आपने उसकी कॉपी चेक नहीं की? बस की कॉपी देखिए, वर्ड्स टेढ़े मेढ़े, इधर उसने काम किया था। ये देखिए, अम्ब्रेला की स्पेलिंग भी नहीं ठीक और लाइन पे भी कुछ नहीं आ रहा। कोई शेप ही नहीं है वर्ड्स की, अल्फाबेट्स की। मुझे लगता है उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाह रही हैं आप? आप रिलैक्स नहीं, मैं ये आप ये कहना चाह रही हैं मेरी बेटी पागल? अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। प्लीज सोचें, क्योंकि उसके आगे की जिंदगी का सवाल है। जी, मैं सोचूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस तोशीन बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं आमना की टीचर बात कर रही हूँ। आपने जो मेरे साथ डिस्कशन किया, मैंने उसके बारे में सोचा है, तो आप क्या कहते हैं कि मैं उससे साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराऊँ? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए आपको एक बार। चलिए फिर हम लोग कल चलते हैं। इसकी ना स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो है पढ़ती सही नहीं है, याद नहीं रखती, कोई काम नहीं करती है। मैं पहले इसको घर में पढ़ाती थी तो मुझे लगा कि शायद जो है लड़के की वजह से जो है नहीं कर रही। फिर मैंने इसको एकेडमी भी लगवा के दी, लेकिन फिर भी जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। हाँ, मैं आमना की स्कूल टीचर हूँ और मैं इसको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और मैंने इसकी मामा को कहा था, अप्रोच किया था कि इसकी राइटिंग बहुत वीक है, बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, तो हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो जी, वो तो हम पता कर लेंगे कोई साइकोलॉजिकल इशू है कि नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि ज़्यादातर लैब कहाँ पे करती है? इसकी राइटिंग बहुत स्लो है, वर्ड्स उल्टे सीधे, मतलब टेढ़े मेढ़े लिखेगी, कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई वर्ड मिस कर देगी या फिर कोई ऐड कर देगी। क्रिएटिव राइटिंग है ही नहीं, उससे कुछ भी नहीं लिख सकती। वर्ड इसके लाइन पर आती ही नहीं है, वो नीचे गिरा कोई ऊपर आ रहा है। और वर्ड्स का कोई तोड़ जोड़ नहीं, मतलब अगर कोई नया सेंटेंस पढ़ेगी तो उसको बोलना भी नहीं आएगा और लिख भी नहीं सकती। और इवन कि उसकी पेंसिल की ग्रिप भी नहीं है, वो पेंसिल भी सही से। अच्छा ठीक है, स्कूल के तो मतलब समझ आ गई कि स्कूल में कैसा बिहेवियर चल रहा है। बाकी आप ये बताएं कि घर में किस तरह मतलब इसकी एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर रही है, और आपको ऐसा लगता हो कि कुछ ये भी ऐसी हरकतें जिससे अपने एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एज से पीछे है? स्टडी से कोई भी रिलेटेड बात करूँ तो चिढ़ जाती है, और होमवर्क करवाने लगो तो होमवर्क से जो है भाग जाती है। एकेडमी में मैंने इसको लगवा के दिया, लेकिन फिर भी जो है ना टीचर्स की यही कंप्लेन है कि ये अटेंशन नहीं देती और राइटिंग भी इसकी बहुत गंदी है और पता नहीं क्या लिखती है, कुछ समझ नहीं आती।
अच्छा, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया है कि मतलब इसके, जैसे कि आप दोनों ने बताया कि कैसी इसकी स्टडीज़ में एक्टिविटीज़ है, स्टडीज़ में इसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसके अलावा आपने नोट किया हो कि दूसरी कुछ नॉर्मल प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ जिनमें ये मतलब ठीक तरह नहीं परफॉर्म कर पाती, मतलब सही तरह नहीं एक चीज़ को कर पाएगी, अंजाम दे पाएगी। लेट्स सपोज जिस तरह आप शू लेसेस को टाई कर पाना या अपने टीथ ब्रश कर पाना। जी हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, जैसे कि आप दोनों ने मुझे बताया कि इसकी स्टडीज परफॉर्मेंस और इसकी दूसरी प्रोसीजरल एक्टिविटीज दोनों ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट लेना चाहूँगी और देखूंगी कि मतलब किस तरह इसकी राइटिंग परफॉर्मेंस है। आई डोंट थिंक सो आप लोग कुछ साथ लाए होंगे नोटबुक्स वगैरह, तो आमना बच्चे आप इधर आके मेरे पास बैठो और काइंडली कुछ राइट डाउन करो। अच्छा, आपको मैं लेट्स सपोज आपने अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, तो वो यहाँ पर लिखो। पेन की ग्रिप जो बेटा वो जरा मतलब ठीक तरह पकड़ो। अपने इंडेक्स फिंगर को ना पीछे रखो, पीछे इधर बिल्कुल इस पे रखो। मैंने आपकी बेटी का टेस्ट लिया है और टेस्ट में इसने बहुत सी मतलब इस तरह की गलतियां की हैं। जैसे कि अब नाम आमना है, इसने एम की जगह डब्ल्यू लिखा हुआ है और ए में कहीं पे ए लिखा है, कहीं पे इसने स्टार बना दिया है। और मैं लिखते हुए भी नोट कर रही थी कि इसके पेन की ग्रिप भी ठीक नहीं है, क्रैम्प ग्रिप है बहुत ज्यादा। इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो पहले आप लोगों ने बताया फिर बाद में मैंने भी देखे, तो इससे यही नजर आता है और यही मतलब नतीजा निकलता है। इसे कोई बीमारी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं लगता। इसे डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया एक ऐसी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें आपकी राइटिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। ट्रबल विद राइटिंग बच्चे को उससे वो सफर करता है और इसमें आपकी दूसरी स्किल्स सारी राइटिंग से रिलेटेड, जिसमें हैंड राइटिंग, टाइपिंग, स्पेलिंग ये सब शामिल होती हैं। इस पे यानी कि इस बच्चे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है ऐसी स्किल्स पे। हर 5 में से एक बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, जिसमें डिसलेक्सिया, ADHD या अटेंशन और लर्निंग इश्यूज भी आ सकते हैं। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द के बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी की कोई सिम्टम नोट करें तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करें ताकि कम्युनिटी में बेहतरी लाई जा सके। थैंक यू। If you want to learn more about the psychological related theories and the psychological disorders, do subscribe the channel and hit the bell icon button so you may get the new and updated videos regarding the psychological theories, disorders and much more. Thank you very much once again for joining Yoga with THV and have a very good and nice day. Thank you.